जिसमें दिल लुट गए देख के कुर्बानियां, प्रेम खुद मिट गए। सोच ले जाने मन हमको मिलना है अब, आगे पीछे नहीं साथ चलना है अब। मोहब्बत राज है ऐसा जो समझाया नहीं जाता, ये ऐसा गीत है हर साज पे गाया नहीं जाता। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम अरे दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। Are you with us? Can you feel it? Then let's go for it. ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। ओ चाहत से हम तुम है, चाहत से संसार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। Thank you, students. Thank you very much for this glamorous performance. श्री चांदा सीमेंट फैक्ट्री के उपाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी पधारे हैं। मैं अत्यंत विनम्रता एवं आदर से उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ एवं हम सबके समक्ष अपने विचारों को रखने का अनुरोध करती हूँ। श्री चंद्रशेखर जी प्लीज। Good evening, everybody. Dr. Mishra, Father Tani, Sister Philo,
sisters, parents and children here who are participating. It's a great occasion that I am here with you all. The school, which is said to be the foundation for any child to grow. We parents only give birth to a child thinking about his future, making a plans where and how he will grow up. We take them to school, thinking so many dreams in our mind, thinking whether the school will be good or bad. But when you come to a school, you talk to the parents, you talk to the school teachers, you talk to the principal, you analyze whether the school will give that, will make my dream true, which I have felt for my child. That's how we start our life as a parent. But the main thing which is being done is done only at school. I'll say that the school is the foundation, absolutely foundation for a child to grow and to become a good citizen. Not only citizen, can be a good leader, can be a good teacher, can be a good engineer, doctor, artist, a player, anyone. But this is the place where it starts. And I am very, very proud to say the school, this school, our school, under the guidance of Sister Philo, is really doing very well. Our students are, as Dr. Bishop has told, to change the mahal. Sir, I am here to tell you, this school is creating that mahal where every parent is feeling proud that their children are here. I have been here only 2 times earlier to this place, and I have seen the discipline, I have seen the knowledge, and I have seen the sort of cooperation the teachers and students are having here. And of course, today the program which has been done here is one of its own example. And this is a teaching to everybody of us here how we can do wonders. The wonder is only in the mind. What I say is, I was just recalling in the childhood one doha Kabir ka, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दिया मिलाए. If I really see this is a place which can lead you to God and which can make you to learn about the knowledge and the God, I will really thanks the school, and I will pray everybody that the way the school is growing, it should further grow, and the parents should feel proud that they are a part of that school where their sons or daughters are studying. With these words, I am really thankful to you, and the program which has been conducted here is really marvelous, and I will really appreciate all the participants and all the sort of organizers who have done this. Thank you very much. धन्यवाद श्री चंद्रशेखर जी, आपकी प्रशंसा सुनकर हम सब वाकई में धन्य हुए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए अब आपको ले चलते हैं केरल प्रदेश, जहां कलाकार संगीत की लय पर थिरक रहे हैं। ये दक्षिण भारतीय लोकगीत पर आधारित रावणा प्रभु फिल्म का मलयालम भाषा का मधुर गीत है, जिसमें संपूर्ण प्रकृति में समाये संगीत की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है, जहां हवाएं बांसुरी की सुरीली धुनें सुनाती हैं, झरनों नदियों की भी स्वर लहरियां हैं,
पंछियों की दिलकश आवाजें हैं, पत्तों की सरसराहट में भी एक लय है। आइए देखिए संगीत एवं नृत्य का ये अनुपम दृश्य। The world has been turned to a global village, but still in the sanctum of our minds, we are of a particular nation, state, and of a society. And the lives and dislikes of our hearts are likely to be that of our society. But still, there is something which may please all of us, I mean, people of any kind and of any origin. Here is yet another folk dance of Kerala origin, which may entertain you like anything. Now, ladies and gentlemen, get ready to behold this magic of dance. Yes, magic I said, for I'm sure this is going to be a real magic of dance. ശാന്താകാരം സരസിജനയനം വന്ദേഹം ചിന്മയരൂപം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം. തരള മധുര മുരളി ഉണര് പ്രണയഭരിത കവിത ഉണര് മനസ്സു നിറയും അതുല ഹരിത മത മഹോത്സവം. വരവീനകൾ തിരുവാണികൾ മതമൊടു തിരുവടി തൊഴുതട് ശ്രുതി ചേരണ വലിവോണതിൽ അനുപദ മഴകായി മറിമുഖി മമ സഹിമയിൽ നടയിവളുടെ നടനം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം 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 ദ്രുതതാളം. ഇന്ദ്രനീലമേഘമിന്റെ ദൂതുപോയ ഹംസമായി മഞ്ഞൊരുകിയ മഞ്ചിനിലെ മന്ദഹാസ ദീപ്തിയോടെ നീ എനിക്കു തുമ്രിയായി. മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ചിലും ചിലും മരതകമല മൊഴി തിരയുകയായി. മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ചിലും ചിലും മരതകമല മൊഴി തിരയുകയായി. ഇരുനിഴലിലെ ജലഗലികളിൽ ഉണരും വലിയ പ്രണയകലിക തിരതുരയിടും ഒരു കടലിലെ ഗസലിലരിയും മനസമായി. ഇരുനിഴലിലെ ജലഗലികളിൽ ഉണരും വലിയ പ്രണയകലിക തിരതുരയിടും ഒരു കടലിലെ ഗസലിലരിയും മനസമായി. വിജനവനിയിൽ വിടഹലിയിൽ ശിശിരസരമെഴുതിയ ചന്ദനമണി ചന്ദനമണി മൃദു ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം. യമുനയിലെ പ്രിയമൊഴി വെണ്ണിലാവിൽ വീണലിഞ്ഞ പൂർണ്ണചന്ദ്രബിംബമായി. ശ്രാവണമണി മേടകളിൽ കാവുകൾ പറന്നരാവിൽ പൂവണിഞ്ഞ പുണ്യമായി. ശ്രുതിപരമത സുഖലഹരികളിൽ ദിനം ദിനം മുഖരിതമിരുകൊലുസുകളിൽ. ശ്രുതിപരമത സുഖലഹരികളിൽ ദിനം ദിനം മുഖരിതമിരുകൊലുസുകളിൽ. ഇവയെഴുതിയ വിരിമുകുളമിതരുണ കിരണമണിയുമതിലെ ഇവഗണമണി അണിവിരലിലെ മലയ സരിലെ വലിയവേ. ഇവയെഴുതിയ വിരിമുകുളമിതരുണ കിരണമണിയുമതിലെ ഇവഗണമണി അണിവിരലിലെ മലയ സരിലെ വലിയ മാത്രമായി. മനസ്സിനിരലിലുണരുവ
ഭാരതം സുരതാളം തരള മധുര മുരളി ഉണര് പ്രണയ ഭരിത കവിതയുണര് മനസ്സു നിറയും അതുല ഹരിത മതമഹോത്സവം വരവീണകൾ മൃദുപാണികൾ മതമൊടു തിരുവടി തൊഴുതട് ശ്രുതി ചേരണ പരിപോടതിൽ അനുപദമഴക മതിമുഖി മമ സഹിമയിൽ നടയിവളുടെ നടനം ആ ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം 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 Thank you, students. Thank you very much for this miraculous and marvelous performance. मित्रों, आज प्रत्येक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था एक पीड़ा है, क्योंकि सच तो लुट गया, झूठ बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है, आंखें हैरत से परेशान हैं, इंसान लापता है, कफन बाकी है। अब आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी एकांकी मास्टर साहब। The next item going to be a sensational one, and it may delight you at the maximum. Here are on the stage the actors of this skit. आज संसार में चारों ओर जहाँ भी देखो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे इंसान के खून का प्यासा है। सब जगह मार काट मची हुई है। हमारा यह हिंदी नाटक इसी घटना पर आधारित है। इस हिंदी नाटक का नाम है मास्टर साहब। चांदनी रात का समय है। आपके सामने प्रार्थना में जो लीन व्यक्ति है वह राम रतन है। वह अपने छोटे से गांव के विद्यालय से अवकाश प्राप्त किए 65 साल के बूढ़े मास्टर साहब हैं। वे राम रतन के नाम से नहीं बल्कि मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। प्रार्थना के बाद उन्हें कुछ थकान सी अनुभव हुई और वे खेतों के बीचों बीच चबूतरे पर लेट गए। पिछले दिनों गर्मी हो रही थी, मौसम की भी और दिमाग की भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब को मैंने बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया और यही सिखाया कि ये सारी धरती एक परिवार है। परंतु आज मेरे कानों में यह क्या सुनाई पड़ रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दुनिया तबाह हो गई है, घर बार दे जा रहे हैं, हर जगह मारकाट मची है। क्या ये सब सच
सच है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। ऐसा ही मैंने और मुझ जैसे मास्टरों ने पढ़ाया ना, पढ़ाते हैं ना, पढ़ाएंगे ना। फिर यह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग होने की बातें कहां से निकली? यह पाकिस्तान, यह पाकिस्तान। मास्टर साहब की दिमागी राहत में एक ठोकर सी लगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक दिन अलग होना ही था और वह हो भी गया। पर इनके अलग होने से क्या दुनिया बदली है? क्या खेती बाड़ी बदली? जो पानी हिंदू पीता है वह मुसलमान भी पीता है ना। क्या इन हवाओं को हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग कर सके हैं? चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, हर कहे इंसान की जय जयकार हो। पढ़ना लिखना वही रहेगा, काम धंधे वही रहेंगे। पाकिस्तान बन गया वह भी नाम बदलकर। क्या पाकिस्तान के लोग कोई और है? वह भी तो हमारे भाई है ना। ऐसा ही मैंने अपने छात्रों को पढ़ाया ना। पाकिस्तान तो एक दिन अलग होना ही था, सो मेरी जिंदगी में हो गया। रात भर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अपनी जमींदारी के सुरक्षित भाग पर लेटे लेटे मास्टर साहब को नींद आ गई। प्रभात की लाली आसमान पर दिखाई दे रही थी। अचानक ही मास्टर साहब की नींद खुल गई। सहसा उन्होंने देखा आकाश नीरव है। यहाँ तक कि चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही है। मास्टर साहब अपने गांव की ओर चल दिए, किंतु एक गहरी चुप्पी पुकार पुकार कर चेतावनी दे रही थी। महाकाल की बेला सर पर है, महाकाल की बेला सर पर है। वहाँ दूर क्या दिखाई दे रहा है? उस सुंदर अस्तित्व पर वह काला काला क्या दिखाई दे रहा है? आज बादल सुबह सुबह थके से क्यों लग रहे हैं? यह जरूर किसी अमंगल का सूचक है। बूढ़े मास्टर अपने परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, चाहे कुछ भी हुआ हो, परंतु वह अग्निकांड मेरे गांव में ना हुआ हो। भगवान, मेरे गांव में ना हो। मास्टर साहब ने यह तो स्पष्ट है, वह मेरा गांव ही चल रहा है। भगवान, वह मेरा गांव ही चल रहा है। मास्टर साहब ने अपनी प्रार्थना की मांग और भी कम कर दी। हे भगवान, चाहे सारा गांव ही जलकर भस्म क्यों ना हो जाए, परंतु मेरे गांव के किसी भी निवासी को कुछ ना होने पाए। भगवान, कुछ ना होने पाए। मास्टर साहब
अब दौड़ने लगे और बहुत ही जल्दी वे पसीने पसीने हो गए। वे बहुत ही तेजी से दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत त्रासदी का हादसा उन्हें सुनाई देने लगा। ओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। कुछ सैनिक और महिला हाहाकार कर रहे थे। मास्टर साहब ने अपनी प्रार्थना की मांग और भी कम कर दी। हे भगवान, चाहे कितने भी कत्ल क्यों ना हो जाए, परंतु मेरे गांव के किसी भी स्त्री का अपमान ना होने पाए भगवान। अपमान ना होने पाए। सहसा चीत्कार के एक बड़े तूफान ने उनके शरीर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक झकझोर कर रख दिया। मेरे घर के सभी स्त्रियां और बच्चे गांव में ही हैं। लेकिन मेरी पोती निम्मो, जिसकी 15 वर्षगांठ में अभी 5 ही दिन हुए थे, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। निम्मो, ओ निम्मो, निम्मो। मास्टर साहब की सारी अभिलाषाएं खुद ब खुद अपनी लाडली पोती निम्मो के चारों ओर केंद्रित हो गई। हे भगवान, यह तेरी लज्जा का सवाल है। चाहे तू निम्मो को अपने पास बुला लो भगवान, परंतु उसकी बेइज्जती ना होने पाए भगवान, उसकी बेइज्जती ना होने पाए। मास्टर साहब अब अपने गांव की ओर चलिए। वे पसीने से तरबतर हो चुके थे। मास्टर साहब अपने गांव के समीप पहुंच गए और लपककर अपने घर के समीप पहुंचकर उन्होंने बहुत ही सहमे सहमे आवाज दी। निम्मो, ओ निम्मो, निम्मो की दादी, ओ निम्मो की दादी, ओ ये सब क्या हो गया भगवान? मेरी जीवन संगिनी है, मेरी बड़ी विधवा पुत्री है। मेरे प्यारे प्रकाश, मेरे प्यारे प्रकाश, मेरे प्यारे संतोष, सब निष्प्राण निष्पन्द पड़े हैं भगवान। इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? तू इनकी जगह काश मुझे बुला देता तो यहाँ ठीक रहता भगवान। मास्टर साहब को ऐसा लगा जैसे वो खुद भी निष्प्राण हो गए हैं। लेकिन मेरी पोती निम्मो कहीं दिखाई नहीं दे रही। निम्मो, ओ निम्मो,
बूढ़े मास्टर साहब की परेशानी की सीमाएं समुंदर के उस अत्यंत तीसर पर आए। वृद्ध की आत्मा ने अपने आराध्य देवता से पूछा, हे भगवान, मेरे किस अपराध की सजा मेरे परिवार वालों को और निम्बों को दे रहे हो भगवान? अपनी जीवन संगिनी, अपनी बड़ी विधवा पुत्री और दोनों पुत्रों को एक साथ खोकर बूढ़े के लिए अब जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वे सोच रहे थे कि काश वो भी उनके साथ मर जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन बूढ़े मास्टर साहब तो अब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। मेरी पोती निम्मो उन गुंडों के हाथ में है, उन गुंडों के हाथ में। मास्टर साहब ने अब यह निश्चय कर लिया था कि यह बूढ़ा दादा निम्मो की तलाश करेगा, उसके पास जाएगा, लेकिन यह बूढ़ा दादा उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन यह बूढ़ा दादा एक काम जरूर करेगा। यह बूढ़ा दादा निम्मो की तलाश करेगा, उसके पास जाएगा और फिर उसकी हत्या करेगा और फिर खुद मर जाएगा, वे चुपचाप वहां से चले गए। गांव छोड़ने के 3 दिनों के भीतर मास्टर साहब का जैसे कायाकल्प हो गया। मास्टर साहब का चेहरा इतना गमगीन और गंभीर दिखाई देने लगा कि इसके बाद वे अपनी सारी जिंदगी में ना कभी हंसे, ना कभी मुस्कुराए। मास्टर साहब को यह मालूम हो गया कि उनके गांव पर आक्रमण करने वाले का मुखिया पूरी गांव का जमींदार था। वो ना जाने कितनी ही लड़कियों को अपने साथ ले गया था। मास्टर साहब को अब यह अनुभूति भी हो गई थी, वह अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक आ चुके हैं। इसी अनुभूति के साथ साथ उनका हाथ खुद ब खुद उनकी जेब में चला गया, जहां उन्होंने एक चाकू संभाल कर रखा था। बूढ़े मास्टर ने चारों ओर अपनी खोजती नजर डाली और जब दूर दूर तक उन्हें कोई मानव आकृति दिखाई नहीं दी, तब उन्होंने कांपते हाथों से जेब से चाकू निकाल लिया। चलते चलते ही बाएं हाथ में चाकू पकड़कर दाएं हाथ से उसे खोला और फिर उन्होंने अपनी उंगली में चाकू के धार की परीक्षा ली। यह क्या दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अपने छात्रों को सदैव कलम पकड़ना सिखाया,
चाकू छुरी पकड़ना कभी नहीं सिखाया, परंतु आज मेरी जिंदगी में यह क्या दिन आ गया है भगवान। मुझे खुद यह चाकू पकड़ना पड़ रहा है भगवान। उनके थके हुए मन में एक अजीब सी उत्तेजना आ गई। अब मैं अपना काम बखूबी कर सकूंगा। इस तेज चाकू से एक हत्या और एक आत्महत्या करूंगा। उन्होंने अपना चाकू बंद करके जेब में डाल लिया और फिर वे वहां से चले गए। चलते चलते वे एक मकान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटे बच्चे ने आकर पूछा, आपको क्या चाहिए? क्या जमींदार साहब घर पर है? चाचा जी पास के घर में गए हुए हैं। आने से कहना कि नूरपुर से एक पैगाम आया था। हाँ, कह दूंगा। सहसा उनके चेहरे में घृणा उत्पन्न हो गई, किंतु जो छोटा बच्चा पहले पहल मास्टर साहब का स्वागत करने आया था, उसी का हाथ पकड़कर निम्मो बैठक के कमरे में प्रवेश हुई और निम्मो को देखते ही मास्टर साहब उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। जमींदार गांव के लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसलिए लोग उससे बहुत अधिक डरते थे। जमींदार को आते देखते ही गली में शोर मच गया। काफी यह क्या दिन देखना पड़ रहा है, जिस भारतीय संस्कृति में कन्या को मातृ रूप से देखा जाता है, उसकी यह दयनीय दशा। क्या मैंने अपने छात्रों को यही पढ़ाया? जैसे ही जमींदार को पता चला कि अचानक ही उसके घर में कोई आ गया है, वह गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए अपने घर में आ गया। कौन आकर मेरे घर में घुस आया है? यह कौन चिल्ला रहा है? मास्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मास्टर साहब, बचपन में जब हम रोया करते थे, आप हमारे आंसू पोंछा करते थे, हमें चुप कराया करते थे, परंतु आज आपकी आंखों में आंसू। लेकिन यह लड़की आपकी कौन लगती है मास्टर साहब? यह मेरी पोती है। और तभी मेरा बेटा नबी उसे अपनी सगी बहन समझने लगा है। हे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे भूल होने से बचा लिया और सही रास्ते पे ले आया। ओ मास्टर साहब, आप इस लड़की के साथ मैं हिफाजत जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
लेकिन रसूल बेटा, मैंने तुम सबको प्रेम के साथ मिलकर रहना पड़ाया था, फिर तुम इस गलत मार्ग पर कैसे आ गए? मास्टर साहब, मैं कुछ गलत लोगों के बहकावे में आके गलत काम करने लगा था, परंतु आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मास्टर साहब, मैं आज से आपके बताए रास्ते पे चलूंगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज मैंने जो अपने विद्यार्थियों के लिए सपना देखा था कि वो प्रेम के साथ अच्छे मार्ग पर चले, वह पूर्ण हुआ। Master Sahib, it was really melodious and marvelous. Thank you very much. प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर जन्म लेने से सभी अनुयायी खुशियों का इजहार उत्साह और आनंद से करते हैं। जब प्रभु का आगमन इस धरती पर हो गया है तो पृथ्वी जन्नत हो गई। हे प्रभु, तू प्रेम का स्वरूप है, ये खूबसूरत संसार तुम्हारा ही स्वरूप है। सुनिए कलाकारों का कव्वाली। Music is so strange that it may cure any disease of mind within no time. And it plays a kawali presented by the school girl and a musical teacher. And I'm sure this is going to be quite a different entertainment for all of us. जमी पर आ पहुँचा, जन्नत जमी पर आ पहुँचा, पछताना दिल बदलना है, रब का कहा तुझे करना है, हर उसका तुझको बनना है। जन्नत जमी पर आ पहुँचा, जन्नत जमी पर आ पहुँचा। सारी दुनिया बोल रही, आवाज खुदा की गूंज रही, सारी दुनिया बोल रही, आवाज खुदा की गूंज रही। सारी दुनिया बोल रही, आवाज खुदा की गूंज रही, सारी दुनिया बोल रही, आवाज खुदा की गूंज रही। सारी दुनिया बोल रही, आवाज
आवाज खुदा की गूंज रही, रब खुदा पहुंचा है, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा। मसीहा ओम नदीम सानी मोहब्बत की छवि, ओ 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 मसीहा इंसानों में आ पहुंचा है, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा। इंसान और खुदा के रिश्ते का है सास मसीहा से, इंसान और खुदा के रिश्ते का है सास मसीहा से, इंसान और खुदा के रिश्ते का है सास मसीहा से, इंसान और खुदा के रिश्ते का है सास मसीहा से, खुद खुदा पहुंचा है, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा। खूबसूरत दुनिया ये जागिर खुदा की शान है, 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 राखन आरा पहुंचा है, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा, जन्नत ज़मीं पर आ पहुंचा। Thank you, Mr. Sunil and dear students, for your lovely voice. राजस्थान कला और संस्कृति का खजाना है। इसी की छवि को देखिए इस मोहक नृत्य में। आयो रे मारो ढोल। Rajasthani art, culture and civilization stand out to be the best while we talk about the diversity and unity of India. This choreography of Rajasthani style and song will definitely stand out to be the finest of our program. And here are them on the stage with their alluring movements.
Thank you very much. Thank you very much. Now, I would like to request Srimati Vani, teacher in English, to come up on the stage and give away the welcome stamps.
I take the privilege to present the vote of thanks this evening. First of all, I thank God Almighty for bestowing His showers of blessings upon us. I sincerely thank Right Reverend Dr. Edwin Colasso, who has kindly consented to preside over the function, accepting our invitation. I thank His Excellency for encouraging and cheering us by His gracious presence. Your Excellency, you have enriched us through your words from the vast expanse of your knowledge. I hope the parents will truly follow the guiding principles in molding their children towards a bright and prosperous future. I am immensely grateful to Sri Chandrasekhar, Vice President ACC, who has consented to be our chief guest. Sir, in spite of your busy schedule, you could devote your valuable time to be amidst us this evening. I also extend my thanks to Mrs. Chandrasekhar, whose gracious presence has made the function all the more radiant and beautiful. Next, I extend my heartfelt thanks to Reverend Father Toomey for being with us on this colorful evening. I also extend my sincere thanks to all our distinguished guests, dignitaries, well-wishers, and of course, the parents of our beloved students who joined us to make this cultural evening colorful and successful. I also thank the Electrical Department, ACC, police, and who made every arrangement for the peaceful and smooth conduct of the program and making it a grand success. A big thanks to all the volunteers and all my colleagues who worked silently, unnoticed by others, contributing their share towards the success of the program. Last but not the least, I do express my sincere thanks to all the participants for having worked day in and day out for making the program a grand success. Once again, thanking each and every one who responded to our invitation, I conclude. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. बैंड के कलाकार आपके सम्मुख राष्ट्रगीत की धुन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगीत को मान मिलाएं। Parade! Best students, attention! National Anthem!